آج کا کلام ہے، ہم سیکھیں گے کلام کے کلام میں سے کہ عورت کا کردار جو ہے نصیحت کے اندر عورت کا کردار کیسا ہے۔ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ دونوں جو ہے ان کو ہم دیکھیں گے، اور عورت کے کردار کو کہ جو راست باز عورت ہے، جو فہم اور عقل مند عورت ہے، وہ اپنے گھر کو کس طرح بناتی ہے، اور جو بیوقوف عورت ہے وہ اپنے گھر کو کیسے برباد جو ہے وہ کرتی ہے۔ آئیے کلام خدا میں سے امثال کی کتاب مقدس سلیمان کی معرفت کی گئی کتاب امثال کی کتاب، اس کا 14واں باب اور اس کی جو ہے پہلی آیت جو ہے ہم کلام سے پڑھیں۔ اس کی پہلی آیت امثال 14واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے، پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے باعث سے تشریف رکھے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے راست باز عورت، اور راست باز جو عورت ہے وہ اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتی ہے، لیکن جو احمق ہے وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور ہر روز اس کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فساد اور ابلیس کی وہ قوتیں جو اس کو تنگ کرتی ہیں، جو اس کے اندر کام کرتی ہیں، جب وہ دنا نہیں ہوتی، جب وہ راست باز نہیں ہوتی۔ اسی لیے آج کا جو مضمون ہے وہ ہے راست باز عورت ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ راست باز ٹھہرتی ہیں مردوں کے مقابلے، لیکن ہم جو بائبل مقدس کے مطابق یا ہم اپنی جو پرسنل لائف ہے یا جو ہماری جو جسمانی زندگی ہے اس میں ہم عورت کو شاید اتنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے اس کے بارے میں، لیکن بائبل مقدس میں عورت کا کردار جو ہے یہ بڑا اہم کردار ہے۔ عورت بائبل مقدس میں عورتوں کو بہت عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے جس کو خدا نے اسے دیا ہے، انسان نے نہیں بلکہ کس نے؟ خدا نے۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو جب وہ اکیلا تھا، جب وہ تنہا تھا، تو خدا نے یہ سوچا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو خدا نے پھر ایک عورت جو ہے اس کے جسم میں سے لے کر ایک عورت کو بنایا، اور پھر ان کو جو ہے وہ میاں بیوی کا رتبہ عطا کیا، اور خدا نے جو ہے وہ عورت کو اس کا ساتھی مقرر کیا۔ اور اسی لیے جب ہم بائبل مقدس میں سے چند عورتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، میں نے 7-8-9 عورتوں کا ذکر بائبل مقدس میں سے لیا ہے، جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ عورت جو ہے وہ کس طرح راست باز بنتی ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ خدا کے کلام کو اپنی درجہ دیتی ہے اور اپنے گھر کو بناتی ہے، اور احمد کی طرح نہیں کہ وہ اپنے گھر کو کیا کر دے، برباد کر۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بڑی بیوقوف عورت ہے جو اپنے گھر کو کیا کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ بیوقوف عورتیں ہمیشہ اپنے گھر کو برباد کرتی ہیں، لیکن جو ہارون اور موسیٰ کی بہن مریم جیسی عورتیں، جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، ہارون اور موسیٰ کی جو بہن مریم ہے وہ بڑی خدا کی عظیم بندی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور عورت کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام سارہ ہے۔ اس کا نام جو کس کی بیوی ہے؟ ابراہم کی۔ کس کی؟ ابراہم کی بیوی ہے، اور یہ بہت نیک اور بڑی راست باز عورت ہے، اور اس کا کردار آپ جانتے ہیں۔ اس کے کردار کو، اگر آپ ابراہم کے کردار کو جانتے ہیں تو پھر آپ سارہ کے کردار کو بھی جانتے ہیں، جس نے خدا کا انتظار کیا، جس نے خدا کا کیا کیا؟ انتظار کیا، بلکہ اس نے خدا کا انتظار کیا۔ اس نے 99 برس تک خدا کا انتظار کیا کہ وہ خدا جو اسے بنا، جس نے اسے بنایا ہے، وہ اسے اولاد بھی کیا کرے گا۔ اگر وہ ناراض طور تو تھی تو ابراہم کو
छोड़ देती, लेकिन वो क्या है, राष्ट्रवाद औरत थी, इसलिए उसने अपने घर को बनाए रखा और उसने कभी भी इब्लीस के शिकंजे में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं किया, बल्कि वो अपने शौहर के साथ मुतफिक रही और खुदा के साथ मुतफिक रही और उसने कामयाबी को क्या किया, हासिल किया और कौमों का बाप कहलाया और वो कौमों की माँ है। आमीन। वो कौमों का क्या है, बाप है और वो कौमों की माँ है। और खुदा उससे फरमाता है कि देख, खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तारों को गिन, और अगर तू गिन सकता है तो तेरी औलाद को मैं इस तरह बढ़ाऊंगा जिस तरह रात जो है वो सितारे हैं और रेत के क्या हैं, जर्रे हैं। मैं इस तरह तेरी नस्ल को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा और बरूबंद करूंगा। वो जमीन पर इस तरह होंगे। तो जब खुदा अपने लोगों को चुनता है तो उनको क्या करता है, बरकत देता है। और औरत जो है वो अपने घर को अगर बनाना चाहे, अगर वो दुआ गो है, अगर वो खुदा के साथ जो है वो चलने वाली है, अगर वो अपने शौहर के साथ मुतफिक है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है बीवी के वसीला से शौहर राष्ट्रवाद ठहरता है और शौहर के वसीला से बीवी राष्ट्रवाद ठहरती है। तो मेरे सिखों, जब हम बाइबल मुकद्दस में सारा जैसी जो है वो दना औरत को देखते हैं तो हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी जो है वो जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव और उनको कलाम के वसीला से बताना चाहिए कि औरत का किरदार जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना बड़ा किरदार है। फिर हम तीसरी औरत का जिक्र देखते हैं जिसका नाम रूथ। इसका नाम रूथ के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या था इसका किरदार? ये एक गैर कौम से है। कहाँ से है? ये गैर कौम से है, बनी इसराइल से नहीं है, बल्कि ये गैर कौम से है। और इसने नौमी के साथ अपनी उस कौम के अंदर आना चाहा जिसके अंदर उसकी शादी है। जब नौमी बाहर चली गई कहत के दिनों के अंदर, तो फिर नौमी के साथ रूथ जो है वो वापस आ गई, ठीक है, कौम बनी इसराइल के अंदर। और उसने कहा, जब वो वापस आ रही थी तो नौमी ने उसे कहा कि मेरे पास शौहर नहीं है, मेरे बेटे थे जो मर गए हैं और तू क्या कर, अपने लोगों में चली जा। तो वो दना औरत गिनी गई और उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि तेरा खुदा मेरा खुदा है और तेरे लोग मेरे लोग हैं। और ये दनाई की बात है। और जब वो खुदा की बंदी के साथ जो है वो वापस वहाँ आई तो फिर आप देखें वो जो कौमें हैं जिनसे मसीह यीशु की पैदाइश होती है, वो उनका शजरा निसब जो है वो मसीह यीशु से जाकर मिलता है इस रूह के वसीला से। इसने जो है वो बोइस के साथ क्या किया, निकाह किया और फिर उससे जो है वो आगे मसीह यीशु की जो नस्ल का शजरा निस्ब है, वो जो शजरा निस्ब है वो मसीह यीशु का जाके इस कौम से जा मिलता है, इस रूह से जा मिलता है जिससे मसीह क्या हुआ है, पैदा। उससे अबेद पैदा हुआ और अबेद से यीशु पैदा हुआ और यीशु से दाऊद और दाऊद से मसीह यीशु पैदा हुआ। ये उस औरत से है जो गैर कौम की है, लेकिन इसने अपने घर को क्या कर दिया है, बना लिया है। ये दनाई के साथ इसने अपने घर को बनाया। आमीन। और जो दना औरतें होती हैं वो अपने घर को क्या करती हैं, बनाती हैं, ना कि उसको बिगाड़ती हैं। जिस तरह रूथ ने अपने जो है वो अपनी सास के साथ मिलकर अपने घर को ही नहीं बल्कि अपनी कौम को भी क्या किया, बचाया। अपनी कौम के लिए उसने दर्द रखा और अपने लोगों के लिए उसने क्या किया, दर्द रखा। और फिर उसने जो है वो अपने लोगों को जो है वो बचाया। लेकिन इसमें एक चौथी औरत आती है जो अहमद है। चौथी औरत आती है, मैंने आपको कभी जिक्र करना है, ये दो औरतें थी, तीन, जिन्होंने बरकत हासिल की और अपने गानों को क्या किया, उठाया। लेकिन एक औरत और आती है जिसका नाम दलाइला है। इसका नाम सैमसोन के साथ थी। उसने अक्लमंदी नहीं की बल्कि उसने क्या की, बेवकूफ़ी। और बेवकूफ़ी के वसीला से उसने एक सुरमा, जो खुदा का बंदा है, जो खुदा का सुरमा है, जिसने बहुत सी जंग की और बहुत सारे लोगों को अकेले मारा, हजारों को, लाखों को मारा। और फिर क्या हुआ, उसने दलाइला ने उसके राज को किया जाना।
और उसके राज को जानने के बाद उसने लोगों को अहमद औरतों वाला काम किया, और उसने इस राज को जानकर क्या किया, उस वक्त के हाकिमों को क्या किया, बता दिया, और फिर उसकी ताकत को उससे क्या कर लिया, छीन लिया, और फिर अपने इस जो है वो समसून को उसने क्या किया, गैर कौम के हवाला किया, और उसकी ताकत जो है जाती है। ये कौन सी औरत है? ये जना औरत है, ये अहमक औरत है। ये कौन है? ये अहमक औरत है। इसका किरदार आप देखें, इसके किरदार में जो है वो रास्तबाजी नजर नहीं आती है, बल्कि लालच, बुरी ख्वाहिशात इसकी जिंदगी के अंदर हमें नजर आती है। और जितनी रास्तबाज औरतें हैं वो अपने शहरों के, अपने लोगों के, अपनी कौम के रास्तों को कभी पास नहीं करती, बल्कि वो खुदा के कलाम के साथ अपनी क्या करती हैं, जिंदगी को बसर करती हैं। और फिर इसमें अगर आप मलका अस्तर का जिक्र पढ़ते हैं, पांचवा जो है वो पांचवी जो औरत है उसमें मलका अस्तर है। और मलका अस्तर जो है वो खुदा के हुजूर में, बादशाह के हुजूर में, उसकी कौम और उसके लोग जो हैं वो मार देने के लिए उनको हुक्म दे दिया गया, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए। लेकिन ये चुप नहीं बैठी है, ये अपनी कौम के लिए चुप नहीं बैठी है मलका अस्तर, बल्कि इसने अपनी कौम का दर्द रखा, और इसने अपनी कौम को बचाने के लिए बादशाह के हुजूर खड़ी हो गई, और इसने बादशाह के हुजूर खड़े होकर अपनी कौम के लिए इसने जो है वो खुदा के कलाम के वसीला से इसने गरहजारी की, और बादशाह के हुजूर खड़ी होकर अपनी कौम के लिए इसने दुआ भी की, और बहुत से रोज़े भी इसने जो है वो अपनी कौम को, और इसने जो है वो खुदा के लिए रखे, और इसने भी अपनी कौम को क्या कर लिया, बचा लिया। इसने अपनी कौम के लिए दर्द रखा। ये भी इतना औरत गिनी जाती है जो बादशाह के हुजूर में क्या है, खड़ी है, और इसने बादशाह के हुजूर अपने आप को पेश किया, और फिर इसने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को क्या किया, बस किया। इसके बाद हमें एलिशबा नजर आती है जो यूहन्ना अस्तबागी की क्या है, माँ। इसके बाद हमें यूहन्ना अस्तबागी की माँ एलिशबा नजर आती है जो खुदा की बंदी है, और इसने खुदा के कलाम को बखूबी, ये काहिन की क्या है, बीवी है। क्या है? ये काहिन की बीवी है, और ये काहिना है, इसने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लिया है, और खुदा का कलाम इस पर नाज़िल हुआ है, और इससे वो बेटा पैदा हुआ है जो मसीह यीशु की राह को क्या करता है, तैयार करता है। इसने मसीह यीशु की राह को क्या किया, तैयार किया। और ये मुकद्दसा मरियम से कहती है कि तू औरतों में क्या है, मुबारक है, और ये रास्तबाज औरत गिनी गई है जिसके वसीला से जिसने अपने घर को नहीं बल्कि अपने कबीले, अपने कुनबे के लिए जो है वो रास्तबाज गिनी गई है। और ये मुकद्दस औरतें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, और जो जिनका किरदार इस जो है बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। लेकिन कुछ औरतों का किरदार हमें जो है वो अच्छा नजर नहीं आता। इसमें मुकद्दसा मरियम का रुतबा सबसे क्या है, बुलंद। मुकद्दसा मरियम जिसमें से कौन पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, और यीशु मसीह जो है इससे पैदा हुआ, इसलिए मुकद्दसा मरियम का रुतबा सारी औरतों से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसने नजात दहिंदा को क्या दिया, जन्म दिया है। इसलिए मुकद्दसा मरियम का रुतबा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मरियम अकेली आपको नज़र आती है जो जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये मसीह यीशु के पास आई, और इसने अपना कीमती इत्र जो है मसीह यीशु के कदमों पर डाला, और इसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह को क्या किया, उसके पाँव धोए, और अपने बालों से यीशु मसीह के जो है वो पाँव को क्या किया, साफ किया। और ये भी जो है वो यीशु मसीह के पास आती है। शागिर्द कहते हैं कि ये कैसी बुरी औरत है, लेकिन यीशु मसीह उनके दिलों के राजों को जानकर कहता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि एक शख्स के 2 कर्जदार थे, और एक के 100 और एक के 500, तो दोनों को, जो कर्जदार था, जो मालिक था, उन्हें दोनों को माफ कर दिया। तो उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत जो है वो दिखाई, जिसके ज्यादा माफ। तो यीशु मसीह कहता है इसके गुनाह जो थे वो भी जो ज्यादा थे वो क्या हो गए, माफ हो गए, इसलिए इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई है। मेरे चीज़ों, जब हम खुदा के साथ मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, और फिर खुदा हमें उसके वसीला से क्या करता है, बरकत अता करता है। और फिर मरियम मगदलीनी के बाद एक और बेवकूफ़ औरत हमें नजर आती है, वो है सफीरा। ये वो 9वीं औरत है जो बाइबल मुकद्दस में, इससे आगे भी है, रमतिया है और मथिया है,
इसके अलावा भी औरतें हैं ऐवान की किताब के अंदर। लेकिन एक आखिरी औरत है जो बेवकूफ़ का मैंने बोला, हननिया और उसकी बीवी सफीरा। उसकी बीवी जो सफीरा है ये अहमक औरत है, बेवकूफ़ औरत है। हालांकि ये राष्ट्रवादों किले के अंदर थी, ये खुदा के लोगों के साथ चलते थे, खुदा के लोगों के साथ बैठते थे, खुदा के लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, लेकिन इनके दिल के अंदर क्या आ गया है? लालच आ गया। जब लालच हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, इसलिए फिर क्या है ना, तो किसी चीज़ का लालच ना करना। तो जब लालच आ जाता है तो फिर क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। लालच जो है वो ख्वाहिश करता है, और ख्वाहिश फिर गुनाह को क्या देती है? जन्म देती है। और जो है वो गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मौत को पैदा करता है। क्या करता है? गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर मौत पैदा कर देता है। और इसलिए इस औरत ने भी गुनाह किया, लालच किया, और फिर इसकी ज़िंदगी के अंदर मौत वाक़ हो गई। ये भी वो अहमक औरत है जिसने अपने घर को क्या कर दिया? अपने साथ साथ अपने आप को तो बर्बाद किया, लेकिन अपने साथ साथ इसने अपने घर को भी क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आइए इस बात पर गौर करें, कैसे इसने अपने घर को, ये मियाँ और बीवी दोनों आपस में एका कर लेते हैं। जब दोनों एका कर लेते हैं कि हम खुदा का जो हिस्सा है वो नहीं देंगे, जब हम एका कर लेते हैं कि हम खुदा का हिस्सा नहीं देंगे बल्कि उसमें से अपने लिए कुछ रख लेंगे, तो फिर क्या होता है? फिर मौत हमारी जिंदगी की जो है वो दौड़ करती है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें उन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम इस बात को जानते हैं, हम इस कलाम को जानते हैं कि हम उन औरतों की तरह जो राष्ट्रवादी की ज़िंदगी बसर करती हैं और अपने शोरों के लिए क्या हैं? वो ताज, वो अपने शोरों के लिए फख्र हैं। जो औरतें अच्छा घर बसाती हैं, जो औरतें अपने शोरों के लिए जो है वो अच्छी सोच रखती हैं, अच्छा ख्याल रखती हैं और उनके लिए दुआ करती हैं, खुदा उनकी घरानों को क्या करता है? बरकत देता है। लेकिन जो औरतें अपने शोरों के साथ मिलकर खुदा के काम में रुकावट का सबब बनती हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। और इस औरत की तरह जो सफीरा है, इसने खुद तो मरना ही था, इसने अपने शौहर के साथ मरने के लिए इन्होंने एका कर लिया। क्या कर लिया? गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गुनाह के साथ एका कर लिया, और गुनाह इनकी जिंदगी के अंदर बढ़ गया। और इन्होंने जो दौलत, जो खेत इन्होंने बेचा था, उसमें से रसूलों को देने की खातिर उन्होंने कहा था सारा कुछ हम क्या करेंगे? रसूलों को देंगे, खुदा के लिए देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर एक किसानों ने अच्छा ला के देते हैं, मूसा भाई बैठ जाओ, रख लिया। मेरे चीज़ों, अगर हम ही ना रहें, अगर हमारी ज़िंदगी ही ना रहे, तो वो पैसा हमारा किस काम है जो हमने क्या किया है? जमा किया है, जिसको हमने अपने लिए रखा है कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए है। अगर ज़िंदगी ना रहे, इन्होंने भी ऐसा किया। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास है हम उसको क्या करेंगे? खुदावंद के लिए दे देंगे। लेकिन जब पैसा आ गया तो फिर उन्होंने कहा चलो थोड़ा अपने लिए भी रख लीजिए। जब हम मांगते हैं खुदा से कि खुदा हमें दे, तो फिर खुदा देता है, तो फिर हम क्या करते हैं? सब कुछ अपने लिए, सब कुछ के लिए, किसके लिए? अपने लिए खर्च करते हैं। तो फिर खुदा उस बरकत को वापस ले लेता है। ना कि हम जो है वो इस बात के लिए कि जब हम खुदा के साथ अहद करते हैं और अच्छे खादम, अच्छी खादमाएँ हम बनते हैं, हम रासपास बनते हैं, हम रासपास बहनें होती हैं, रासपास भाई होते हैं, तो रासपास औरत जो है वो अपने किरदार से पहचानी जाती है। और रासपास औरत जो है, रासपास औरत अपना घर क्या करती है? बनाती है, और अहमद उसे अपने हाथों से क्या करती है? बर्बाद करती है। मेरे शिशु, इस सफीरा ने भी अहमद बनकर अपने ही हाथों से अपने घर को क्या कर दिया? बर्बाद। इब्राहिम, आइए इस बात को जानिए किस तरह जब वो खुदा के लोगों के पास पहुँचे हैं और खुदा के लोगों के साथ, खुदा के रूह के साथ क्या बोला है? कभी कभी हम भी खुदा के रूह के साथ क्या बोल रहे थे? खुदा के, लेकिन हम जान नहीं, हम ये जानते नहीं हैं। हम शायद छुपा सकते हैं, लोगों से छुपा सकते हैं, आदमों से छुपा सकते हैं, हम जो है वो अपने अजीज़ों से छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा से छुपा सकते हैं? खुदा हमें देख रहा है, खुदा की नजरें हम पर हैं। बेशक हम अपने तौर पर खुदा से सोचते हैं कि हम पादरी को कौन सा पता चलेगा, भाई को कौन सा पता चलेगा, बहन को कौन सा पता चलेगा, लेकिन
मेरे चीज़ों, हमारा खुदा जो आसमान पर, जो हमारा बनाने वाला है, जो हमारा क्रिएटर है, जिसने आपको और मुझे हमारे दिलों और गुर्दों से क्या है, वाकिफ है, वो जानता है। और खुदा का बंदा कहता है, तुमने क्यों खुदा के रूह से, सफीरा से कहता है कि तुमने क्यों खुदा के रूह से झूठ बोला। पहले शौहर और फिर बीवी दोनों खत्म हो गए, और वो जायदाद, वो पैसा कहाँ रह गया? दुनिया के अंदर आ गया। इसलिए कहा, अपना माल वहाँ जमा करो जहाँ न क्या शराब करता है और ना उसे संग। मेरी अजीज बहनों, मेरे भाई, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि औरत का किरदार जो है वो घर को बदल सकता है, घर की सारी रौनक को बदल सकता है। अगर वो चाहे तो अपने हाथों से क्या कर दे, उसे बर्बाद कर दे। अगर चाहे तो अपने हाथों से उसे राष्ट्रबाजी के साथ अच्छा कर ले, और फिर राष्ट्रबाजी की जिंदगी के साथ अपने बच्चों को और अपने शौहर के साथ, अपने घराने के साथ अच्छी जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन ये किरदार उस वक्त हमें मिलता है जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी, जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, जब खुदा का रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, तो फिर हम खुदा के साथ व्यवस्थित के साथ व्यवस्था हो सकता है, हम अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो है राष्ट्रवाद औरत का किरदार बनती हैं और राष्ट्रवाद बनकर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। खुदावंद आपको और मुझे आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी को जड़ पकड़े, और हम दिन ब दिन और रात जो है वो तरक्की करें, और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी के अंदर अफजील दर्जा दें, ताकि हम खुदा के दर के खुदावंद